देखो राजा, क्वेश्चन नंबर 26 from the particulars given below, compute the amount of capital gain taxable in respective assessment year. CII ਤੁਹਾਨੂੰ given ਆ, ਤੁਹਾਡੇ year ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆ? 24-25 ਦਾ 363. First point ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? Residential house, and second one is jewelry. Date of sale 4th July 24. It's before 23rd July, मतलब normal. Jewelry 16 December 24, मतलब after what? 23rd July 24 means sir इधर no indexing. Beware. इधर CII का कोई रोल काम नहीं आना. Okay, next one. Date of sale हो गया. Date of acquisitions तो given है 1st April 2006 and 12th December 2010. मतलब ये सारे before after base year है. मतलब FMV का कोई रोल नहीं. Then sale proceeds are given 29,50,000 and 10,50,000. Second one is sale expense 0 and 5,000. Cost of assets 6,10,000, 4,20,000. Amount invested in construction of new house up to 30 June 2025 8 lakh da. Then in purchase of bonds of NHAI 1 lakh दी. किस दिन परचेज की थी? 4 December 2024 1 lakh का. ठीक है. And invested in capital gain deposit scheme also 31st July 2025, that is 1,50,000. और सेकंड साइड ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇसी ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ. ਐਂਡ ਜੁਐਲਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ? REC ਦੇ ਬੌਂਡਸ ਕਿੰਨੇ? 1 ਲੱਖ ਦੇ 31st March 25. नीचे पढ़ो. अमाउंट स्पेंट बाय 3rd July 2027 in completion of house withdrawn out of amount deposited under capital gain deposit scheme is rupees 1,30,000. Now this point is also new. Okay, we'll discuss this. Hun suno dhyan. Your previous year is 2024-25 and assessment year is 25-26. पहली चीज दो एसेट सेल कीते, that is residential house and jewelry. सेल दी डेट दसो. 4th July 24 and 16 December 24. Yes or no? Sale consideration कितनी? 29,50,000. Second one 10,50,000. Selling expenses residential house nil. बुक से देखो नाल क्वेश्चन बच्चा. सेलिंग एक्सपेंसेस किया nil और दूसरी साइड 5,000. ठीक है. सेलिंग एक्सपेंस इधर nil, इधर 5,000. That's why we started from sale consideration. Otherwise we could have started from NSE. NSE कितना आ गया बोलो? 29,50,000 and 10,45,000. Clear? Yes or no? Then next one, index cost of acquisition or cost of acquisition. Cost किधर ले? Jewelry, because that's after 23rd July 2024. ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਦੇਖੋ cost कितना ਸੀ. House the cost was 6,10,000 into 363 divided by date of acquisition was 1st April 2006. 117 आऊगा. Just a second. कितना आया? 18,92,564. Yes or no? डिफरेंस कितना आ रहा है? 1057
436 चेक करो आंसर इन्ना ही है ਤੁਹਾਡਾ फर्स्ट क्वेश्चन ਦਾ बुक ਚ फर्स्ट ਦਾ हाउस ਦਾ इन्ना ही गिवन है 10,57,560 10,57,436 और एक चीज देखो बट कि CII सही गिवन है वैसे 117 यूज तो कर लिया 1 अप्रैल 2006 मींस केड़ा था 67 एक चीज चेक करते हैं कि इतने गलत लिखे या इतने गलत लिखे अपने इंडेक्स वाले पेज पे जाओ ठीक है क्वेश्चन दे एरर्स फाइंड करया करो लॉजिकली तो ਅਸੀਂ करता लेना दैट्स ओके बट पता होना चाहिए कि बुक ने कितने गलती की थी अलर्ट माइंड नाल पढ़न की आदत इनू कहते गलती पता चले अदरवाइज ठीक है सानू भी पता ऑप्शन और कोई नहीं आही यूज होना बाकी दूर ਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੋ ਸਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਇੰਡੈਕਸ 2006-7 ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ so your mind should be clear कि मैं 5-6 यूज करना कि 6-7 इसलिए इन्हें क्लियर पैटर्न ना देखना जरूरी है ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਯੂ ਵਿਲ यूज इन द एग्जाम आल्सो दिस वन बट अगर दोनों होंगे यू हैव टू बी स्पेसिफिक इसलिए आदत तो होनी चाहिए ताही पॉइंट आया मेरे माइंड की यार इंडेक्स इज रॉन्ग चेक करो कितना है इंडेक्स 117 है 2005-6 का एंड 6-7 का 122 6-7 का कितना गिवन है 122 लिसन एवरीवन किसका 5-6 का इंडेक्स कितना है 117 6-7 का इंडेक्स कितना 122 अगर हम क्वेश्चन आही डेट फॉलो करोगे दिस शुड बी यूज्ड एक्चुअली बट आंसर ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗਿਵਨ ਆ ਇੱਥੇ ਡੇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਚੇਂਜਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2006 ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ then it's okay with 117 this is actually wrong date अगर डेट फॉलो करो फिर 122 फॉलो करना चाहिए बट फिर आंसर नहीं आना बुक में दैट्स व्हाई यू शुड बी क्लियर कंसेप्ट्स देखो पेपर से कंसेप्ट्स ही यूज करने ना एज इट इज तो कोई क्वेश्चन जरूरी नहीं है उससे डेट पढ़नी या CII पढ़ना दैट्स ओके इसलिए क्रिस्टल क्लियर रखे आप ठीक है सो एडजस्ट हो गया डाउट क्लियर बुक ना आंसर मैच चलो लेट्स मूव ऑन दूसरी साइड ज्वेलरी का दसो कॉस्ट कितना सी 4 लाख नहीं यस 4,20,000 यस नो एंड ईयर वाज 2010 की CII चाहिए आज नहीं चाहिए आज नहीं चाहिए बिकॉज द सेल डेट इज आफ्टर 23rd जुलाई 6,25,000 देखो इंडेक्सिंग दे बिना देख रहे लास्ट ईयर इट वाज अप्रॉक्स 70,000 गेन उनकी आ रहा है इतना मेजर डिफरेंस हो गया विदाउट इंडेक्सिंग कितने 70,000 कितने 6,25,000 नाउ LTCG मैच हो गया बुक ना 625 नेक्स्ट वन आगे की करना नाउ ये इन्वेस्टेड मनी आज कोई रैंकिंग की जरूरत है मैंने दोस्तों क्योंकि तुसी अपने अपने पैसे इन्वेस्ट कर फिर तो कोई चॉइस की गल ही नहीं टेल मी ज्वेलरी दे केस इन्वेस्ट किया इन बॉन्ड्स ऑफ REC the bonds invest kita notified under section 54 EC but it should be invested within 6 months from the date of sale. Date of sale is 16 December 24. What's here? 31st March 25 within 6 months है okay और दोस्तों but 54 EC मिल रहे कितने हैं for land building और वो this is jewelry you will not get any exemption समझ रहे आनी EC क्या था within 6 months आ गया मैक्सिमम 50 लाख है दैट्स ओके बट सारी कंडीशंस देखनी है सो ओनली अवेलेबल फॉर लैंड बिल्डिंग और इतने मिलनी नहीं मिलनी सो 54 EC मिल पाया और इधर नाल इतने लिखो
exemption under section 54 EC is only available for LTCG gained on sale of land, comma, building or both. लाइन लेंदी ना होए सिंपली ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੌਜ਼ ਦੇ यस और क्लियर नेक्स्ट ਹੁਣ आ जाओ रेजिडेंशियल हाउस रेजिडेंशियल हाउस सेल ਕੀਤਾ पैसे लगाए रेजिडेंशियल हाउस ਤੇ यू विल गेट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 बॉन्ड्स च पैसे लगाए केड़ी सेक्शन 54 EC कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम च पैसे पाए 54 ओनली ब्रैकेट्स 2 ओके सो सब तो पहली चीज किन्ने पैसे हाउस ते लगाए 8 लाख ਇਹਦੀ डेट चेक करो इट शुड बी विद इन बिफोर 1 year and after 2 years इतने आफ्टर ही कितना so it should be within 2 years from the date of sale so कितनी देर रहा 30 June sale was 4th July तो within 1 year ही है तो अंदर 2 दे अंदर चाहिए तो एलिजिबल है बॉन्ड्स दी डेट की है 4th December 24 है within 6 months 4th July 4th December within 6 months yes कैपिटल गेन स्कीम का इट्स ओके सुनो ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 54 ਜਾਂ 54 EC लॉजिकल दियो रीजन ना रितिका बोलो 54 दे सकते 54 EC भी दे सकते बट पहला केड़ी देनी चाहिए 54 EC व्हाई बिकॉज EC ते लिमिटेशन है ज्यादा इट इज ओनली अवेलेबल विद लैंड बिल्डिंग और बोथ वो पता नहीं हम ऑब्वियसली यूज होने नहीं 54 वाला तो किस कईयां दी हेल्प कर सकता मतलब हाउस तो कईयां दी हेल्प कर सकता फिलहाल वी आर नोइंग दैट कि इस क्वेश्चन पर्टिकुलर ਆਪਾਂ एग्जेम्पशंस ले रहे उसी पैसे ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਦੋ इसी इसी किन्ने दी बोलो यू इन्वेस्टेड फॉर 1 लाख 1 लाख आ गया उस तो बाद बोली हाउस किन्ने ਦਾ परचेज ਕੀਤਾ 8 लाख ਦਾ ਕੀ ਮਿਲ ਗਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 54 ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ डायरेक्ट 8 लाख आ गया and if you deposited in the capital gain deposit scheme you will get exemption under section 54 2 कितना अमाउंट ਇੱਥੇ भी डायरेक्ट किन्ने ਦੀ अमाउंट इन्वेस्ट ਕੀਤਾ 1,50,000 बट चेक करो ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 150 your gain was 10,57,436 out of that you got the exemptions for 9 lakh you are remaining with 1,57,000 तो ਤੁਸੀਂ 1,50,000 ਉਹ ਚੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤਾ and your taxable remains 7436 everyone yes or no this is your taxable LTCG ठीक है इस केस से देख रहे चॉइस क्यों नहीं आई बिकॉज पर्सन ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ एम्प्लॉयर ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਆਪਣੇ सीए ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨ ਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ स्पेसिफिक गल कर रहे हैं देन इट्स ओके कादी चॉइस करनी इट्स टैक्सेबल LTCG yes or no 7436 and the other one 6,25,000 ਇਹ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ
हाउस परचेज और हाउस कंस्ट्रक्शन दी टाइम लिमिट किसी सेक्शन 54 अकॉर्डिंग 1 year before sale you can purchase, 2 years after sale you can purchase, and 3 years after sale you can construct. Yes or no? 3 years after sale you can construct. उस दिन सीखा सी कि अगर टाइम लिमिट मोर देन अ ईयर मिल रहा या मोर देन 6 जो भी है ITR तो फिल हो जाए। अगर तुसी पैसा उसी टाइम बिफोर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल नहीं स्पेंड करते ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੂਗਾ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ ਇਨ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ। ਤਾਂ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲਓ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। नो 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 यू कांट डू दैट। यू गेटिंग दैट। अगर एग्जेम्पशन लेनी था यू हैव टू पुट दैट अमाउंट इन बोलो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अंडर सेक्शन 54(2). ओके ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1,50,000 ਉੱਥੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ कि सर ये पैसा इसी घर के उपर आप लगा देना। कितनी देर च लगाओगे जिन्नी देर कंस्ट्रक्शन का टाइम मिलता। कंस्ट्रक्शन टाइम इज 3 years। या परचेज का तुसी कहो मैं कितने होर लगा ला तो भी 2 years मिल रहे। ਹੁਣ ਉੱਥੇ परचेज के कंसेप्ट मैटर्स कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ऑलरेडी हाउस है नहीं है और कितना कैपिटल गेन है बिकॉज यू रेड दैट ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम यू कैन गेट टू exemption for purchase of two houses only once in a lifetime। Sanya, yes or no? ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 फॉर टू हाउसेस। ठीक है और ਤੁਹਾਡੇ को ऑलरेडी कितना है वो सब मैटर करता है वो इस जगह कंसर्न नहीं है। ਹੁਣ देखते क्वेश्चन ने की क्या कितना कि इस पैसे का कितने साल मिल रहे ਤੁਹਾਨੂੰ 3 साल। रीड करो 3 साल मींस डेट ऑफ सेल दसोगे 4 जुलाई 24 सी 3 years कितने तक आओगे 3 जुलाई 27 तक टाइम मिल गया। कंफर्म हो गया। यस और नो। क्वेश्चन हेल्प भी करता है। कंफर्म हो गया 3 साल वाला पॉइंट। कहते 3 जुलाई 27 तक अमाउंट स्पेंड किया उस घर की कंप्लीशन ਲਈ कितना 1,30,000 कितों लिया सी उसी कैपिटल गेन स्कीम पिक कर ले पैसे और यूज कर ले किन्ने 1,30,000 किन्ने नहीं यूज किए 20,000। 3 जुलाई खत्म टाइम खत्म 20,000 इज नॉट यूज फॉर दैट वो एग्जेम्पशन रिवर्स हो। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ 150 ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਚ ਆਈ यूज दैट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस फॉर कंप्लीशन ऑफ द हाउस। ओके so you did that but only for 1,30,000। 20,000 उस स्कीम च बचया टाइम लिमिट ओवर हो गई मतलब ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ 3 जुलाई 27 मतलब इट्स प्रीवियस ईयर 26-27 और 27-28 27-28 पूरे ध्यान एंड असेसमेंट ईयर 28-29। सो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ नीचे नोट लिखोगे प्रीवियस ईयर 2027-28 एंड असेसमेंट ईयर 2028-29 हेडिंग आ गई। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन ऑलरेडी क्लेम्ड कितनी सी इन विच असेसमेंट ईयर 25-26 you claimed exemption for 1,50,000 under the capital gain deposit scheme। yes or no। एक्चुअल अमाउंट स्पेंड कितना कितना कंस्ट्रक्शन थे 1,30,000 बचया कितना 20,000 नहीं यूज होया ਉਹਨੂੰ एग्जेम्पशन रिवर्स हो जाओ मतलब वो इस असेसमेंट ईयर ਦੇ अंदर इट विल बिकम योर गेन बट वो एक्चुअली चेष्टा इस साल का गेन है एक्चुअली इस साल का नहीं। so that's why you'll write deemed LTC मान लिया जाऊगा आज deemed long term capital gain for this year। yes or no। ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਲਈ ਸੀ 54 ਜਾਂ 54F डायरेक्ट या प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट ਲਈ ਸੀ। अगर डायरेक्ट ਲਈ ਸੀ राजा then रिवर्स भी डायरेक्ट हो गई। अगर 54F ਲਈ ਹੁੰਦੀ प्रोपोर्शनेट रिवर्स भी प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए ਉਹਦਾ भी क्वेश्चन आऊगा। ईयर आए राजा ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ चीज चेक की डेट ऑफ सेल कितनी
4 जुलाई 24 फर्स्ट कंसेप्ट। क्या ना सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, सोचना जरूरी क्योंकि डेट ऑफ सेल इज 4 जुलाई 24। किन्नी देर का टाइम मिलता गेन स्कीम ਚ ਪਾ ਕੇ 3 ਇਅਰਸ ਦਾ। 3 जुलाई 27 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡੇਟ ਰਾਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਨਫਰਮ ਹੋ, ਉਸ ਡੇਟ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 1,30,000। ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਚ? ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੰਦ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 20,000 ਉਸ ਘਰ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਓਵਰ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੋ ਗਈ ਓਵਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਆਹ ਡੇਟ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਸਾਲ ਚ। This is in previous year 27-28 and your assessment year will be 28-29। ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਈਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਵਾਲਾ 20,000 ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਗੇਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਯੂ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਡੀਮਡ ਐਲਟੀਸੀ 20,000। ਹੁਣ ਉਹ ਡੀਮਡ ਐਲਟੀਸੀ ਜੀ, ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਫੋਕਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 54 ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 20,000 ਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਰਿਵਰਸਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਯੈਸ অর নো? ਯੈਸ অর नो? ਐਨੀ ਡਾਊਟ? ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਆਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਯੂ ਹੈਵ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਹੋਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਪੜੋ, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्सेबल। सिंपल क्या क्वेश्चन चाहिए लिखे? कई बार वो स्पेसिफिक बोलते हैं, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर दिस एंड दिस, या प्रीवियस ईयर दिस एंड दिस। वो क्लियरली दसते हैं, तो थोड़ा क्वेश्चन फिर उतना स्पेसिफिक हो जाओ। ये सुनो, अगर वो स्पेसिफिक कह दे कि तुसी अपने असेसमेंट ईयरली सॉल्व करो, फिर नीचे वाला क्वेश्चन नहीं चाहिए। अगर वो स्पेसिफिक कह दे कि वो वाला सॉल्व करके दो, फिर ऊपर वाला चाहिए नहीं, बट वो करना पैना वर्किंग नोट के तौर पर। बिकॉज डीम्ड एंड ऑल सारी एग्जामेशन किन्नी लाई सारी डिपेंड कर दी, नीचे वाला ताही आऊगा जो ऊपर वाला आया। मीन्स ऊपर वाला पॉइंट बिकम्स द वर्किंग। थर्ड केस वो खुद ही कह दूंगा दोनों सॉल्व करके। यू गेटिंग दैट? यस और नो? बट ऊपर सोचो, ऊपर बहुत इजी करके दिया जा सकता 5 मार्क्स कि ऊपर सिर्फ सेक्शन 54 देती जाए, सिंपल, कोई इसी ना दे। और 54 एंड 54 टू सिंपल सिंपल सीधा देती, इंडेक्सिंग करके थोड़ा शॉर्ट जल्दी सॉल्व होया। ਉਹਦੀ नीचे आके 20,000 की थोड़ी डीम्ड एलटीसी सॉल्व करवानी, तो देन इट कैन बी 5 मार्कर आल्सो। यस और नो? इसलिए क्वेश्चन ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਿਓ, ਅਗਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਪੜ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ, ਆਈ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ +1 2 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हैबिट कभी नहीं खराब करनी। अपनी मर्जी ਨਾਲ थोड़ी कुछ भी सॉल्व करी जाना। क्वेश्चन कुछ डिमांड कर रहा ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਦਾ क्वेश्चन ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? नो। और ਤੁਹਾਨੂੰ कई बार दिखाया कि क्वेश्चन कई बार बच्चे अद्धा पढ़ते हैं और मैनी टाइम्स पूरा पढ़ोगे भी तो नीचे जिथे आ गया प्रिपेयर दिस अकाउंट एंड दिस, ਉਹਦੇ नीचे भी कोई डिटेल ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚੇ ਪढ़ते नहीं। बाद ਚ उस डिटेल तो बिना आंसर ਦੇ नंबर गए। 15 ਚ 5 ਤਾਂ ਅਸੀਂ खुद को आते, डिटेल नहीं पढ़ी था। बी स्पेसिफिक फॉर सच थिंग्स, ठीक है? एक्यूरेसी आ जाओगी, कोई बड़ी गल नहीं, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है? यस और नो? क्वेश्चन 24 देखो राजा। मिस्टर सिद्धारमैया सोल्ड द फॉलोइंग। ये हो गया नाम है क्या? I pronounced it properly, Siddharamaiya. Okay. Sold the following assets during the year 2024-25.
As he has discontinued his business, ਤੁਹਾਨੂੰ A B C D E F 6 points given है और purchase of another house is 54 या 54F. ओके सो पहली चीज लैंड परचेज कर कीता सी 2001 सिचुएटेड एट मैसूर फॉर 80,000 एंड सेल किन्ने दी 3,40,000 मशीनरी जिदी रिटर्न डाउन वैल्यू गिवन है मींस दिस इज अ डेप्रिशिएबल एसेट तो सब तो पहली हेडिंग की लिख ली मशीनरी डब्ल्यूडीवी के अकॉर्डिंग कर दे टेल मी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है दी 6,000 2 मिनट पेन डाउन सब दे पहले पेन डाउन 2-3 मिनट दो कैलकुलेटर स्पिक करो टेल मी मशीनरी दा रिटर्न डाउन वैल्यू के स्टेट दा पाना 1 अप्रैल 2024 कितना 6,000 फॉर्मेट आगे बोलो एड एडिशंस है कोई नो सेल कंसिडरेशन 21,000 6,000 वाली चीज 21 सेल कितनी मींस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15,000 केड़ा गेन शॉर्ट टर्म डेप्रिसिएबल एसेट ऑलवेज शॉर्ट टर्म नेक्स्ट पॉइंट सेकंड किया परचेज एंड ऑल गिवन है कोई इतना गिवन है सी पॉइंट पढ़ो पहले ऑफिस फर्नीचर विच वाज परचेज्ड फॉर 1200 सोल्ड फॉर 1700 ठीक है इतने डेप्रिशिएबल था नहीं क्या कितने डब्ल्यूडीबी था नहीं गिवन मींस इतने की करोगे सेल कंसिडरेशन 1700 कॉस्ट कॉस्ट या इंडेक्स कॉस्ट अप्रैल 24 से परचेज किया अप्रैल 24 कॉस्ट शॉर्ट टर्म बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म विद इन द ईयर ही सेल करता दोबारा सो इतने की होया सेल कंसिडरेशन 1700 cost was 1200 short term capital gain again 500 this was for office furniture this was not depreciable उन्होंने आ नहीं किया सो फॉर्मेट है ना कैपिटल गेन चैप्टर के अकॉर्डिंग ही बनाया ठीक है बी एंड सी डन नाउ द फर्स्ट पॉइंट वाज ए पॉइंट वाज लैंड डी पॉइंट वाज शॉप ई पॉइंट वाज रेजिडेंशियल हाउस एंड एफ पॉइंट वाज लिस्टेड डिवेंचर्स इन्होंने की करी है लिस्टेड डिवेंचर्स की भी गल दसो बोलो these were purchased on 1st May 2024 and sold on 16th March 25 साल होया मई 24 तो मार्च 25 साल भी नहीं होया ये भी शॉर्ट टर्म इच की आऊगा बोलो सेल कंसिडरेशन 12,000 परचेज परचेज कॉस्ट नॉर्मल कुछ नहीं किया मीन फेस वैल्यू काउंट कर लोगे so 12,000 and 10,000 कितना आ जाएगा 2,000 will be the again short term capital gain yes or no this was f point भी नोट कर देना listed debentures tell me sale consideration is 12,000 and इसका क्लियर होएगा पॉइंट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ नहीं गिवन था फेस वैल्यू यूज कर लोगे डिबेंचर्स दी 10,000 again this was short term so STCG कि जेड़ा लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग कह रहे सी ਉਹ 'ਚ 3 पार्ट्स छोटे छोटे हो गए अच्छा ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ पूरे टेबल 'ਚ क्यों नहीं पाया बिकॉज इट्स हैविंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ एग्जेम्पशन नहीं मिलती ठीक है बचे कौन हुन पॉइंट नंबर ए पॉइंट नंबर डी एंड पॉइंट नंबर ई ठीक है तो कौन कौन होगा लैंड शॉप रेजिडेंशियल हाउस लिख लें रेजिडेंशियल हाउस लैंड एंड शॉप एवरीवन यस और नो आगे दसो सब तो पहली चीज सेलिंग एक्सपेंस अगर नहीं है तो वी कैन स्टार्ट विद एनएससी इटसेल्फ एनएससी नेट सेल कंसिडरेशन टेल मी सन लैंड दी एनएससी 3,40,000
Land the NSE was 3,40,000 and shop the 3,30,000 and residential house 3,50,000. So put करिए residential house 3,50,000, land was sold for 3,40,000 and shop was sold for 3,30,000. Everyone, yes or no? Minus Ritika, date of sale given है सबका check करो. Land the 15th April 24, shop the 15th April 24, and third one house the 15th April 24. All are before 23rd July, means normal indexing होगी. Okay, बोलो. एक चीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट. पहला और ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ. अर्लीयर ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਐਸੈਟ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਗੇਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ. ਔਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗੇਨ ਲਾਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ. ਐਗਰੀ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 23rd ਜੁਲਾਈ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗੇਨ ਆ ਰਿਹਾ. ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪੁਆਇੰਟ. Without indexing also there is a long term capital gain. और लॉन्ग टर्म ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਇਅਰਸ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਲਗਾਤੀ. 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ. ਯੈਸ ਔਰ बोलो. एनएससी क्लियर हो गया. ਹੁਣ इंडेक्स करो ਇਹਦਾ. ਕੀ करोगे? Land was purchased for 80,000 raja into 363 divide by 100 290,400. Land beware कितने पुट करना है? Land 2,90,400 माइनस करके दसो कितना आ गया? 49,600. वन थिंग डन. आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो. शॉप. शॉप द कॉस्ट was 90,000 into 363 divided by 113. 289,115. This was for shop. 289,115. Third one, residential house. 1,70,000 into 363 divide by 100 because 2012 base year. कितना आ गया? कितना आया? ਇਹਦੇ ਚ लॉस है ਇਹਦੇ ਚ. न्यू क्वेश्चन डेट का भी चेंज हुई है. मिसिंग है कुछ बच्चा. सुनो राजा, सुनो 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 सुनो. ਇੱਥੇ एरर है, प्रिंटिंग एरर है. दिस वन इज नॉट देयर. हाउस वाज परचेज फॉर 70,000. ठीक है. 70,000 इंटू 363 अपॉन 100. 2,54,100. 95,900. क्लियर? लॉन्ग टर्म गेन्स. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਊਸ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ. ਮੀਨਸ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ LTCG ਟੂ NSE ਫॉर लैंड एंड शॉप. रेजिडेंशियल हाउस ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 54 ਮਿਲੇ. 49,600 divided by 3,40,000
14.59%. The other one is 40885 divided by 3,30,000. It's 12.39%. हाउस किन्ने दा परचेज किया? चेक करो. The new house was purchased for 6,50,000. 6,50,000. बोलो रचा. रितिका, let's start बच्चा. 6,50,000 ਦਾ ਹਾਊਸ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 54. ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲਦੀ. You have to write 95,900. And you will deduct in your working note. Balance is 5,54,100. हाँ हो गया टैक्सेबल क्लियर. यस और नो? रैंकिंग कर चुके ना. ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ? ਲੈਂਡ. ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਐਸਸੀ ਕਿੰਨੀ? what will he say? 3,40,000 rupees. Your amount invested can be maximum till the NSE, up to the NSE amount. Means 340, the means full amount will be exempt. Yes or no? 49,600. Everyone, yes or no? The balance is 2,14,100. Now the third, shop no ki kahoge? NSE, 3,30,000 rupees. What's your amount invested? 2,14,100, and your formula is LTCG into amount invested upon NSE. LTCG was 40885 into 214,100 divided by 33,0000. So 26,526. So 14,359 the exemption taxable आ गया. लैंड पूरा exempt हो चुका. क्या करो इतना ही है. It was question 24. सिद्धारमैया, Ritika, yes or no? Yes. So your only long-term capital gain. केड़ा? Shop da 40885 minus 26526. It's 14359. So your taxable LTCG is 14,359 only. No assets show. And your taxable short-term gains are this, this, and this. की show कर सकते राजा? Taxable short-term capital gain. किन्ने किन्ने सी? 15,000, 500, and 2,000. Total 17,500. Taxable LTCG is Madhvi. LTCG कितना बच्चा? 14,359. And your total taxable capital gains. अगर किसी च लॉस होंदा ते केड़े रूल्स याद करने पैने सी नाल? भुलना चाहिए सारी चीज़ां. फिर सेट ऑफ भी तो करोगे. कौन किहदी हेल्प कर सकदा? लॉन्ग टर्म
लॉन्ग टर्म दी भी कर सकदा, शॉर्ट टर्म दी भी कर सकदा, और शॉर्ट टर्म वाला सिर्फ शॉर्ट टर्म दी में। यू हैव टू बी स्पेसिफिक फॉर दैट। यस और नो? कोई डाउट?